This yoga and conference meditation. will now be recorded. Now we have Sri S.K. Raju Nair sir with us. Sir has the basic degree in Bachelor of Arts. Then he completed his postgraduate degree, Master of Business Administration. And he has the list of degrees which are related with one is postgraduate diploma in entrepreneurship and human relations. It is very rare degree. Very few people have this one. And he did diploma in naturopathy and yoga sciences and postgraduate diploma in yoga science from Sundarlal Sharma University, Chhattisgarh. And he is the approved person from Atal Academy related with yoga and meditation trainer and certified counselor by NMHP, National Mental Health Program by Government of India. And I am proud to say that Sri Raju Nair sir is working with our home institute, Chhatrapati Shivaji Technology, as corporate relations manager. And he is continuously taking the training programs on yoga and meditation for our students and to the public in Durg and Bhilai and throughout Chhattisgarh also. Welcome, sir, for this evening section. And sir is going to enlighten us related to the topic beauty of Indian engineering through yoga and meditation. Please, sir, start your section. Thank you very much, Dr. Sridhar sir. Thank you for your wonderful introduction. Thank you, respected Dean Academics, Dr. Santosh Sharma sir, Dr. Sridhar Rao sir, Dean R&D, Head of the Department Mechanical Engineering of CSIT, dignitaries from various engineering colleges, research scholars, and other related dignitaries. Accept my pranam and good evening, namaskar to one and all. See, I would like to hear from you because I will like to tell you that this session is not a one-way traffic. This is going to be an interactive session. My session is an interactive session. आप लोग को सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, करना है. See, first of all, accept my wishes. आवाज सुनना चाहता हूँ. All I have, switch off your that is this video. I request you at least थोड़ा देर के लिए मैं आप लोग का चेहरा देखना चाहता हूँ. Can you switch on your videos for a while? I want to see you कि मैं किसको address कर रहा हूँ. Hello sir, myself Adish Goswami, means second sem of industrial engineering. Sir, myself Okay, welcome to this wonderful, wonderful session of beauty of inner engineering through yoga and meditation. Okay, sir. Good evening. Achha, my voice is clear. My voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Yeah, namaskar. Because somebody has written in the chat box that voice is not clear, so that I was just confirming that my voice is clear or not. My video is also clear. Yes, sir. Okay, thank you for confirmation. So we are having only 1 hour time, 1 hour and 15 minutes. So I will try to sum up this session with cover this session with a given time. So once again, thanks to CSIT and thanks to the Department of Mechanical Engineering, especially Dr. Santosh Sharma sir, Dr. Sridhar sir, for giving me this opportunity to address on my topic beauty of inner engineering through yoga and meditation. आज का सेशन जो है ये मैं आपको एश्योर करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, today's session is going to boost up your energy. See what
I will first tell that what this session is all about. This session, Beauty of Inner Engineering, is all about, you know, that your day-to-day activities, how we all will maintain our day-to-day activities. This pandemic may, we have seen that during this pandemic, entire world has faced the problem, and till now the world is facing the problem, and maximum problem was occurred by the senior citizens. What was the main problem? The problem was loneliness. What do you mean by that? Loneliness. Loneliness का मतलब ये नहीं होता कि कहीं अकेला बैठा है, अकेला बैठा. No, loneliness means घर में पूरे मेंबर्स होने के बाद भी उस व्यक्ति द्वारा अपने अलग बाकी सदस्य द्वारा उनको नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना. ऐसे कई वर्ल्ड में ऐसे कई केस आए जिसमें हमारे जो माता पिता हैं और बुजुर्ग है घर में अकेलापन महसूस किए, बिकॉज लॉकडाउन में सब घर में ही थे और घर में बहुत सारे n number of families have got clashes in their home, in their family affairs. एक recent एक सर्वे by the psychiatric society के सामने आया है, out of five person, 1% is suffering from stress and depression. हर पांच में से एक व्यक्ति आज स्ट्रेस से ग्रसित है. Why and how we will come out from this, you know, stress and fear, that I will focus. See, this 1 hour session is not enough for it. This session consists of 3 hours. I am taking this session for 3 hours का session है, but 1 घंटे में मैं कर रहा हूँ. In this session, I humbly request you should be dedicated to this session and you should learn from this session. If you are learning from this session, I humbly request you that you should implement this technique in your life. And if you are implementing this technique in your life, then you should take care that whether the technique which has played a vital role or not, whether it has changed your life or not. I request you, somebody has this microphone is on, some voice is coming. Please mute your voice. Right. So whatever the Q&A you are having, whatever the questions you are having, you can just write in the chat box. I will reply after the session. I will be giving my phone number also. I will be sharing my email ID also. You can ask whatever the question in your mind, whether it is open or secret, you can ask me. Your questions will be very confidential and I will be giving the answer. If I am not knowing this answer, I will consult my seniors, I will consult my team, and I will come to you. My helping hands will be definitely coming to you. So, beauty of inner engineering through yoga and meditation. Once again, I humbly request somebody's yes, now it is okay. So before starting this session, there is one condition. I would like to tell the condition. There are some small condition. One is Stiram Sukham Asanam. What do you mean by that? Stiram Sukham Asanam. That means आप जहां बैठे हो, जैसा बैठे हो, स्थिर पूर्वक बैठिए. शरीर को तकलीफ मत दीजिए. अपना शरीर को आरामदायक तरीके से बैठिए और बिल्कुल भी किसी चीज से डिस्टर्ब मत होइए. और जो भी काम है उस काम को अभी 1 घंटे के लिए फिलहाल पेंडिंग रख लीजिए. बिकॉज आज मैं जो चीज आपको देने जा रहा हूं, इट विल वर्क इन योर लाइफ. डेफिनेटली ये आपके जिंदगी में एक एनर्जी का काम करेगा, एक आई ओपनर का काम करेगा. बिकॉज व्हाट आई हैव गेन्ड आई एम शेयरिंग विथ यू. मैंने बहुत कुछ पाया इस छोटी छोटी टेक्निक से. तो आई हम्बली रिक्वेस्ट, मेरे सेशन में आप बैठेंगे, सिर्फ सेशन में अटेंड करना है या सर्टिफिकेट लेना है, इसके लिए मत बैठिए. इस सेशन में आपका लाइफ, आपके जिंदगी में देखिए, हमारा शरीर, व्हाट इज आवर बॉडी इज हिंदुस्तान एंड आवर स्टमक इज मध्य प्रदेश. आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश को कैसे अच्छा रखना है. अगर हमारा स्टमक अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा होगा, क्योंकि हर डिजीज का जननी जो है पेट से होता है. तो फर्स्ट कंडीशन आई हैव टोल्ड स्थिरम सुखम आसनम. जहां भी बैठिए सुखपूर्वक बैठिए. सेकंड कंडीशन इज दैट 10-10.
What do you mean by that? 10:10. 10:10. That indicates smile. Smile. Face value. मुस्कान. देखिए कोई भी क्लॉक, कोई भी घड़ी का जब एडवर्टाइजमेंट होता है, दैट इंडिकेट्स 10:10। कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, यू कैन सी एनी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, दैट एडवर्टाइजमेंट इंडिकेट्स 10:10. दैट इज स्माइल फेस वैल्यू. सी स्माइल इंक्रीजेस आवर फेस वैल्यू. कहते हैं कि वो व्यक्ति तो तब तक सुंदर नहीं लगता, तब तक खूबसूरत नहीं लगता जब तक उस चेहरे में मुस्कान ना हो. इस सेशन में कंपलसरी अगर मुस्कान नहीं भी आ रहा होगा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, तो हटा के नकली मुस्कान रखें, लेकिन मुस्कान रखें. इस सेशन का कंडीशन है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है. फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है. जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर अगर मुस्कुरा सकते हो तो वह जिंदगी है. During the time of failure, during the time of tension, during the time of pandemic, if you are able to keep smile on your face, then surely you will come back to success. That is the fundamental of nature, that is the funda of nature, that is the parameter of nature. So second is 10:10. मुस्कान के साथ बैठिए. Coming to the next point, third condition is closing and opening of eye. What is closing and opening of eye? जब मैं आंखें बंद करने बोलूंगा तो आपको बहुत धीमी गति से, प्यार से, स्नेह से आंखें बंद करना है, और जब खोलने बोलूंगा तब आंखें बहुत धीमी गति से आपको आंखें खोलना है. You have to open your eyes very slowly because the eye is the door of our brain. हमारे मस्तिष्क का द्वार है आंख. इसीलिए जब भी हम ध्यान में, जब भी हम योग में, जब भी हम बैठते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, तो हम जब आंखें खोलते हैं तो आंख जो है बहुत धीमी गति से आंख को खोलना चाहिए. Once again I am repeating, eye is the door of our brain, so that whenever you are opening the eye, be cautious. बहुत धीमी गति से, शरीर और परिसर के प्रति सजग होते हुए बहुत धीमी गति से अपनी आंखें खोलना है. आज today I will just correlate our human system with machineries. Why? Because human body is assembled with sophisticated, delicate and sensitive organs, which can be correlated with high-tech machines, because it is the gift by the natural power. हमारा शरीर करोड़ों खरबों रुपए का शरीर है. इस शरीर को हमको संभाल के रखना है. हम आपको बता दें कि जान है तो जहान है. जब तक हम अच्छे हैं, जब तक हम स्वस्थ हैं, तब तक इस दुनिया की पूरी खूबसूरती हमारे साथ है. अदरवाइज हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं. एक कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ. द बिटर ट्रूथ आई एम टेलिंग. whenever we are अच्छा, whenever we are स्वस्थ, whenever we are healthy, till then everything we can enjoy in this life. Otherwise हर चीज हमको, कितने करोड़ रुपया होने पर भी हमको हमारा पैसा कोई भी काम नहीं आएगा. तो आज मैं छोटा छोटा टेक्निक आपको बता रहा हूँ. डेली आप 1 घंटा अपने लाइफ में आजमाइए. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका 23 आवर्स विल बी फाइन, वेल एंड गुड. यू विल फील हेल्दी. डेली अगर 10 घंटा काम करते हैं, आप एक करके देखिए. कल मॉर्निंग में आप 14 आवर्स काम करेंगे तब भी आप नहीं थकेंगे. This is the power of this beauty of inner engineering through yoga and meditation. This is the power of meditation. This is the power of silence. This is the science of breath you are going to experience. This is brain. You are seeing the brain. Human brain is more powerful than supercomputer. It is able to store millions of data in the memory. तो क्या हम प्रॉपर सांस ले पाते हैं? हमारा ब्रेन तक सांस पहुंच पाता है कि नहीं? आज हम सीखेंगे. आज हम वो टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि हम सांस ब्रेन तक कैसे पहुंचाएंगे. देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू टेक हिज ब्रेथ 15 to 20% ही इज एबल टू टेक. डेली हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 15 से 20% सांस भर पाते हैं. और इस पद्धति में साइंस ऑफ ब्रेथ में हम 100% सांस हम भरेंगे आज. और कैसे भरना है इस चीज को बताऊंगा मैं. नेक्स्ट इज आई, आवर आई.
I is 576 megapixel camera, 500 megapixel camera. It is more powerful than any of the cameras in the world. World में ऐसा कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा निर्माणशाला तैयार नहीं हुआ है, कोई आज तक मैन्युफैक्चरर आज तक इतना परफेक्ट लेंस आज तक मैन्युफैक्चर नहीं किया, which has been gifted by the Lord Almighty, which has been gifted by the Lord Almighty. तो हम जनरली देखते हैं, हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स लोग, सब लोग जनरली देखते हैं कि मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट पहने, बिना चश्मा लगा के चलते हैं। अगर एक छोटा सा कंकड़ भी अगर फास्टली अगर आके टच कर जाए ना, तो आंखों का रेजोल्यूशन वापस नहीं मिलेगा, जो परफेक्ट, जो नेचुरल जो पावर था वो वापस नहीं आएगा। इसलिए हमारा कॉलेज, वी हैव बीन अवार्डेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट हमारा कॉलेज में बिना हेलमेट का हम प्रवेश नहीं देते हैं। CSIT में हमारा हर स्टूडेंट्स यूज टू वेयर हेलमेट, बिना हेलमेट का हम एंट्री देते ही नहीं है। सो दैट वी हैव गॉट सेवरल अवार्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज नोज ईयर वर्क्स लाइक ए रडार सिस्टम। ये मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा, समय कम है हमारे पास तो मैं जस्ट दोहरा रहा हूं। इट्स ए नेचुरल एयर प्यूरिफायर। इसका डिटेल्स प्रेजेंटेशन चाहिए, जस्ट यू मेल मी, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। मैं अभी इस दौरान AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग के तहत मैंने अभी कई सारे कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिए विद डिफरेंट टॉपिक। लाइक आई हैव गिवन प्रेजेंटेशन एट NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, then that MET Mumbai Engineering Trust College, that is in Nasik, Samarth Engineering College, then IPS Academy Indore, LNCT College, Lakshmi Narayan College of Technology Bhopal। इस प्रकार कई जगह मैंने इस सेशन किया है अभी अलग अलग इसमें। I am having session with different topics, with different modules। See, teeth works as a grinding machine। मैं आपको बता दूं कि हमारे पेट में, हमारा स्टमक में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो खाने को पचा सके। हमारा दांत है 32 दांत, 32 teeth given by the powerful, wonderful this Lord Almighty, wonderful nature। क्यों दिया 32 दांत? क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को 32 बार चबाने के लिए दिया है। हम जनरली क्या होता है, हमारा मुंह को डस्टबिन बना देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और निगल लेते, इतना समय नहीं होता है कि चबा चबा के खा सके, जस्ट उसको अंदर ढकेल देते हैं, निगल देते हैं। इसलिए इस कारण ह्यूमन बीइंग सफर्स फ्रॉम एसिडिटी, फ्रॉम दैट खट्टा डकार। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट में होता है, और पेट का प्रॉब्लम से बाकी सब प्रॉब्लम की जननी होती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, आप जब भी भोजन करें आराम से करें, सुखपूर्वक बैठ के चबा चबा के करें, क्योंकि चबाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज टंग, स्किन, हमारा सेंसर मशीन जैसा काम करता है। मैं जल्दी से मूव कर रहा हूं। सी, आवर टंग इज हैविंग द कैपेसिटी टू टेस्ट 2000 to 4000 टेस्टी आइटम्स। इट हैज गॉट इनविजिबल टेस्टी बड्स। हमारा जो जीभ है ना, उसमें लगभग 2000 से 4000 के बीच में टेस्टी बड्स है, जो वेराइटीज ऑफ टेस्ट को हमको एहसास दिलाता है। देखिए यहाँ दिख रहा है ऑक्सीमीटर। इस पैंडेमिक में मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 3 चीज घर पे रखिए। वन इज ऑक्सीमीटर, वन इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर, एंड दैट इज थर्मल स्कैनर, एंड नेक्स्ट इज स्टीम मशीन। स्टीम ये बहुत सस्ता चीज है। ऑक्सीमीटर हेल्प्स यू टू फाइंड आउट योर ऑक्सीजन, आइडेंटिफाई योर ऑक्सीजन लेवल एंड पल्स लेवल। थर्मल स्कैनर आपका टेम्परेचर कभी होगा तो बिना टच किए उसको ये कर सकते हैं। स्टीमर से आप भाप ले सकते हैं डेली। Next is our heart. Heart works like a pump house. It is a pump house giving oxygen to the entire body. Next is kidney. It is purifying plant. It is spinal cord. देखिए spinal cord, हमारा जो spinal cord है पूरा बॉडी उसी पे पूरा खड़ा है। एक गाड़ी का, कार का जो चेसिस है, शॉकअप है, इसके जैसा हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो क्या हम स्पाइनल कॉर्ड का केयर करते हैं? कैसे केयर करते हैं वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज नी बियरिंग। जो नी जो है, हमारा घुटना जो है सबसे पावरफुल लुब्रिकेंट है, उसके अंदर जो लुब्रिकेंट है सबसे पावरफुल है।
हम देखते हैं फैक्ट्रियों में बियरिंग में ऑयल डाला जाता है। क्या आप कभी ऑयल डालते हो अपने बियरिंग में, नी में? नहीं, इट इज द नेचुरल ऑयल गिवन बाय द क्रिएटर। तो नी को कैसे स्वस्थ बनाना है ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज वायरिंग। देखिए 72,000 नस नाड़ी हमारा शरीर से पास हो रहा है। 72,000 वेन्स आर पासिंग थ्रू आवर एंटायर बॉडी, सर से लेकर पांव के टो तक। तो उसमें हम देखिए इतना परफेक्शन है, हम उसमें कैसे सांस में ले जाते हैं और कैसे उसको परफेक्ट रखेंगे, इसके बारे में हम अब देखते हैं कि दिनचर्या को कैसे स्टार्ट करना है, क्या है आगे क्या करना है। सुबह जब उठेंगे तो हम उठेंगे पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरा जॉय के साथ, पूरा उमंग के साथ। हमारा सुबह का जो है जैसी बेड से उठते हैं, फर्स्ट काम सेल्फ अफर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सेल्फ अफर्मेशन? मतलब आप खुद उठ के नेगेटिव बात मत सोचिए। आप खुद जब उठेंगे तो स्वयं आप बात करिए कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशनुमा होने वाला है। कल तक जो चीजें कंप्लीट नहीं हुई थी आज कंप्लीट होगा। बिकॉज सी कहते हैं कि हम जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं पूरा प्रकृति जो है उसको वापस पहुंचाती है। हम जैसे फीलिंग्स दूसरे के प्रति रखते हैं वो इस लॉर्ड क्रिएटर जो है उसको वापस हमारे पास लाता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हम किसी के बारे में अगर गलत सोचेंगे, गलत धारणा रखेंगे तो हमारे प्रति भी गलत धारणा वापस आएगा। हम किसी के बारे में अगर सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं तो हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो मॉर्निंग में आराम से खुशनुमा होके उठें। नेक्स्ट इज उठने के बाद आप फर्स्ट काम क्या करेंगे? आपका बेडशीट को आप घड़ी करिए, फोल्ड करिए, बेडशीट को ऐसा छोड़ के मत जाइए। पहला काम आपका बेडशीट को फोल्ड करके प्रॉपर रखिए, ठीक है। द मॉर्निंग timing defines how you maintain your morning time, defines the entire day। मॉर्निंग में आप कैसे अपना दिनचर्या शुरू करते हैं ये डिफाइन करता कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। अगर आप गुस्से मूड में उठेंगे, अगर कोई टेंशन के साथ उठेंगे, कुछ पुराने स्ट्रेस के साथ उठेंगे तो आपका दिन भी ऐसे ही जाएगा। देखिए सुबह उठ के एक अच्छे ग्लास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के एक ग्लास वाटर से दिनचर्या स्टार्ट करिए। पानी मतलब लूक वार्म वाटर नहीं, गर्म पानी में नींबू डालिए। कई लोग देखिए, कई लोग हमें बोलते हैं कि नींबू सूट नहीं करता, तो ऐसे लोग दे कैन गो फॉर एलोवेरा जूस, अदरवाइज दे कैन हैव हॉट हनी वाटर आल्सो along with some you know that अंकुरित दाना स्प्राउटेड जो है that बीन्स वगैरह से आप जैसे दिख रहा है। अच्छा एक क्लियर है, आप लोग को दिख रहा है? Is it clear? दिख रहा है। Yes, sir. It is clear. Okay, thank you. दिख रहा है सर, दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। ड्रिंकिंग हॉट वाटर। अगर रात को देखिए सोने से पहले अच्छा से ब्रश करके सो जाइए। सुबह उठ के बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ किए आपको तांबे में अगर रखा हुआ पानी पीते हैं तो वो आयुर्वेद में कहा गया कि बहुत औषधि पूर्ण है। रात को आयुर्वेद तांबे में रखा हुआ पानी जो है सुबह जब पिएंगे और उसको गर्म करके तो वो बहुत ही औषधि पूर्ण पानी होता है। नेक्स्ट इज रिसीविंग अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। सुबह सुबह छत में जाइए, आपका बालकनी में जाइए, 5 मिनट के लिए मस्त अपना नाम लेते हुए खुशी से आप सनलाइट को ग्रहण करें। सनलाइट में वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जान है तो जहान है। हम अगर शरीर 1 घंटा अगर सुबह अच्छा दिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपका 23 घंटा आप बच्चे जैसा रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। कल आप आजमा सकते हैं, कल मॉर्निंग में आपका दिनचर्या को इस प्रकार रखें, आप देखिए कि शाम तक काम करने के बाद भी आपको थकान नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, अपनों से आप बहुत स्नेह से बात करोगे। नेक्स्ट इस अपन कम चलते हैं, समय सीमा ऐसा कम है इसलिए मैं योगा की ओर मुड़ता हूं। व्हाट इज योगा? व्हाट इज योग? योग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ये बहुत प्राउड के साथ हमें खुशी होती है बोलने के लिए कि ये जो है योग इज द टेक्निक डेवलप्ड इन आवर कंट्री, आवर नेशन। भारत में जननी इस विधि को आज पूरा विश्व जो है स्वीकार कर लिया है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर
योग को, इंडिया से ज्यादा योग को वहां करते हैं लोग, इतना अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स है। It is been invented 5,000 years ago. 5,000 years ago. Actually, yoga has come from the word yuj, Y-U-J. It stands for unite, to integrate in Sanskrit. Next, आज हम सीखेंगे योग के 3 मेन ब्रांचेस। वन इज आसना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो एक करने से पहले आज हमको क्या करना है? जॉगिंग। मॉर्निंग में आप सुबह उठिए और अपने खाली जगह में, अपने घर में जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन है, वहां पर आप जस्ट वहां जाके आप स्टार्ट करें जॉगिंग। हल्का सा जॉगिंग करिए, पूरा बॉडी जो है आप हिलाते हुए जॉगिंग करें। एक्चुअली सेशन जो है वर्कशॉप जैसा लेता हूं, बट आज हम सब बैठे हुए हैं, आज बैठ के करेंगे। नेक्स्ट इज बॉडी रोटेशन, बॉडी एंड जॉइंट रोटेशन। तो सब सीधे बैठ जाएं, आज मेरे साथ बॉडी रोटेशन करते हैं। बॉडी रोटेशन के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सिंसियरली करना है, सीरियसली नहीं करना है। इस सेशन में कोई भी नोबडी विल सिट सीरियसली, बिकॉज सीरियस व्यक्ति कहाँ बैठता है, कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर सिर्फ सिंसियर व्यक्ति बैठेगा। सिंसियरली बैठना, यू हैव टू सिट सिंसियरली। ओके, तो आज बॉडी रोटेशन कराता हूं। देखिए, बॉडी में सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, जिसको घुमा सकते हैं? मॉर्निंग में डेली करना है आपको। सबसे फर्स्ट पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट किसको घुमाएंगे? कोई बोल सकता है? सिर सर, हेड। हेड। ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर। पहला पार्ट होता है आंख, आई। आंख को घुमाते हैं, आई एक्सरसाइज। सब इस प्रकार राइट थंब को आगे कर लें। कीप योर राइट थंब, मुस्कुराते हुए। मैंने रिक्वेस्ट किया है, मुस्कान नहीं भी आ रहा होगा तो नकली मुस्कान रखें और इस अंगूठे को देखें। सर को घुमाना नहीं है। वी आर परफॉर्मिंग आई एक्सरसाइज। इसको 3 बार करते हैं आप लोग, डेली 10 बार करिएगा। इस अंगूठे में देखें, सर को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सिर्फ अंगूठे। बड़ा सा शून्य बनाएं। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से गोल घुमाएं, मुस्कुराते हुए। चेहरे में 10:10 द सिंबल ऑफ स्माइल। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अगला घुमाते हैं, अपने सर को घुमाते हैं, सांस लेते हुए। सी, इट इज गोइंग टू बी ए सेशन ऑफ साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंस ऑफ ब्रेथ। इफ यू आर, अगर आप वीडियो ऑन करते हो तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। डिवाइन पर्सनालिटी, आई हम्बली रिक्वेस्ट, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो तो बहुत दैविक काम करोगे आप, ताकि हम थोड़ा आप लोग को देख भी सकें। तो सेकंड है, सर को ऊपर ले जाएं, सांस लेना छोड़ना जारी रखें। याद रखिएगा, सांस लेना है, गहरी सांस। कैसे ले रहे हैं? लेना है नाक से लिया हुआ सांस। आपको एहसास करना है कि ब्रेन से टच करते हुए, आपके गले से होते हुए, आपका डायफ्राम में भरते हुए, आपका स्टमक में भर रहा है। चलिए, सांस लेते हुए आप मुंडी को ऊपर ले जाएं, सीलिंग की ओर देखें, नीचे झुक जाएं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए गोल घुमाएं। बहुत धीमी गति से मुस्कुराते हुए गले को गोल घुमाएं। देखिए, साइटिका, गले में जो भी दर्द है, आपका शरीर के लिए सेशन हो रहा है। ये सेशन सिर्फ ऐसी देखने के लिए नहीं है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब हाईली डेडिकेटेड गुरु लोग हैं, आप करें समर्पित भाव से। गोल घुमाएं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। सांस लेना छोड़ना जारी रखें। नाक से गहरी सांस लें और खाली करें।
कंजूसी ना करें, आपका शरीर के लिए औषधि का काम कर रहा, विश्राम करें, रिलैक्स करें और आंखें बंद कर लें। जैसे मैंने कहा, आंखें बंद करना और खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आंखें बंद करते हो, पूरा ध्यान अपने करोड़ों खरबों रुपए के शरीर के साथ रखें, पूरा ध्यान अपने विचारों पे रखें, पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क में हो रही क्रियाकलापों पर रखें, अपने शरीर के साथ रहें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे वाहे गुरु, हे अल्लाह। Thanks to the Lord Almighty. Thanks to the wonderful creation for giving this wonderful life for me, for giving this wonderful moment for me. आंखें बिल्कुल भी बंद रखें। इस संसार में ऐसे कई लाखों लोग हैं जो सुबह की रोशनी नहीं देख पाते हैं। ऐसे कई लाखों लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे कई लाखों लोग हैं जो कभी सुबह की रोशनी नहीं देख पाते। ऐसे कई लाखों लोग हैं जो कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखे। हम लोग सब कितने खुश नसीब है, कितने लकी हैं that we are having this wonderful life. Then also we are crying with this life कि क्या हमेशा कुछ ना कुछ हमें शिकायत रहती है हमारी जिंदगी से। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हो। दोनों हाथों को आगे रख लें और देखिए इस हाथ में 5 जॉइंट है। वी आर हैविंग 5 जॉइंट्स इन दिस हैंड। तो हम पूरा जॉइंट को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? देखिए फर्स्ट जॉइंट कौन सा है? फर्स्ट जॉइंट इज दिस वन, 1 2, दिस वन इज फर्स्ट जॉइंट, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन। ठीक है, चलिए 3 बार करते हैं। सांस लेना छोड़ना जारी रखें। चलिए एहसास करें कि शेर के पंजे जैसा पूरा स्क्वीज करें मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट जॉइंट, नेक्स्ट। आपका शरीर में आज पूरा ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये पोर्शन कान में टच होना चाहिए। दिस पोर्शन शुड बी टच्ड ऑन योर ईयर। मुस्कुराते हुए गोल, वापस एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे में मुस्कान। एक छोटा बच्चा जो है 360 बार डेली मुस्कुराता है। हम लोग सब कितने बार मुस्कुराते हैं? काउंट करके देखिए। वापस। अब इस प्रकार हाथ रख लें। कीप योर हैंड इन सच ए वे, इस प्रकार। दिस इज वेरी पावरफुल क्लैपिंग थेरेपी, क्लैपिंग थेरेपी, क्लैपिंग थेरेपी। एक उंगली से जोरदार ताली बजाएं, एक उंगली से। 2, देखिए अभी इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। 3, 4, 5। नेक्स्ट, देखिए ये पर्वत को टकराना है। ये पर्वत, ये जो उंगली है ना इसके नीचे, इसको पर्वत बोलते हैं। ये टकराना है बस, सिर्फ ये। यू आर परफॉर्मिंग द वेरी पावरफुल क्लैपिंग थेरेपी। और नेक्स्ट, इसको टकराइए पूरे जोश के साथ, पूरे। नेक्स्ट, मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट, क्लैपिंग थेरेपी। नेक्स्ट, इस प्रकार। आज देखिए आपका शरीर में जो भी छोटा मोटा कहीं भी दर्द था होगा ना, दर्द या छोटा मोटा, सब दूर चले जाएगा। बहुत दूर जाके इंडियन ओशन में गिर जाएगा। चलिए करें। नेक्स्ट, चेहरे में मुस्कान रखें। आज आपका शरीर जो है ऊर्जावान होगा। कंधा। नेक्स्ट,
शोल्डर, और इस प्रकार ताली बजाएं, क्लैप योर हैंड। अब जो दोनों हाथों को सामने रख लें, बिल्कुल टच मत करें। देखिए एक मैग्नेटिक वेव तैयार हो गया। देखिए हल्का सा हाथ आपका हाथ को खींचेगा, एक मैग्नेटिक वेव तैयार हो गया है। इसको घर्षण करके आंख और माथे में लगा लें, बहुत पावरफुल है। घर्षण करते हुए आंख और माथे में लगा लें। एक बार और घर्षण कर लें और माथे में लगा लें। रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद। प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। Let the energy absorb in your body. You have performed the very powerful therapy of clapping therapy. Let the energy absorb your body. Let whatever the negative things having in your body may remove. जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर, आपके जीवन में है, सब आज बहुत दूर चले जाएगा। धीरे धीरे करके अपने परिसर और अपने शरीर और अपने विचारों के प्रति सजग होते हुए, जब भी अच्छा लगे, जब भी 100% लगे, बहुत धीमी गति से अपनी आंखें खोल सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं सुबह ये करने के बाद। देखिए आपको क्या करना है, बॉडी रोटेशन हो गया, सब हो गया, और आपको एक जगह में बैठ के सुखासन, इट इज नोन एज सुखासन, ध्यान मुद्रा। थंब और इंडेक्स फिंगर को जब ज्वाइन करके रखते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे में मुस्कान, इट इज नोन एज सुखासन विद चिन्ह मुद्रा। देखिए मुद्रा 4 मुद्रा होता है, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा। ये एडवांस कोर्स में हम सीखते हैं। इट इज नोन एज सुखासन। ये होता है ध्यान मुद्रा में हम बैठे, ध्यान मुद्रा। ये अर्ध पद्मासन है, दिस इज नोन एज पद्मासन। ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं अपन। भस्त्रिका का मतलब होता है डीप इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम मीन्स गिविंग आयाम टू अवर प्राण, गिविंग एनर्जी टू अवर लाइफ फोर्स। प्राण को आयाम देना को प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका मतलब डीप इनहेल एंड एक्सेल, जिस रिदम से सांस अंदर लिए उस रिदम से खाली करने को भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका देखिए इतना पावरफुल है। भस्त्रिका से स्नोरिंग, देखिए इन मेडिकल साइंस देयर आर सम प्रॉब्लम व्हिच कांट बी क्योर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड क्योर्ड। कंट्रोल हो सकता है, लाइक अस्थमा। दमा को मेडिकल साइंस कहती है कि दमा दम के साथ निकलता है, बट भस्त्रिका प्राणायाम एंड दिस कपालभाति एंड नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ने प्रूव कर दिया है कि 1 महीना 30 डेज अगर कंटिन्यूस आप भस्त्रिका प्राणायाम एंड नाड़ी शुद्धि करेंगे तो आपका जो अस्थमा जो है वो कंट्रोल नहीं, क्योर हो जाएगा। ये मैंने कई लोग को करवा के मैंने आजमाया है, मेडिकल साइंस ने प्रूव भी हो गया है कि भस्त्रिका से क्योर होता है। नेक्स्ट इज स्नोरिंग, खर्राटे। खुद तो बहुत अच्छा से सोते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। खर्राटे, खर्राटे का सबसे बेस्ट मेडिसिन है भस्त्रिका प्राणायाम। करिए 15 दिन के बाद आपका खर्राटे बहुत दूर चले जाएगा। नेक्स्ट इज पार्किंसन, पार्किंसन। पार्किंसन इज द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ योर न्यूरो सिस्टम। हमारा शरीर, हमारा हाथ पूरा शिवर करते रहेगा, दैट इज पार्किंसन। पार्किंसन के लिए मेडिसिन नहीं है, पार्किंसन के लिए सबसे बेस्ट है भस्त्रिका प्राणायाम एंड नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। चलिए हम करते हैं, हम एहसास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का। चलिए स्ट्रेट होके सांसें ले, नाक से गहरी सांस ले, सभी करें मेरे साथ, करते रहें। थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, सबका टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करें करें। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। अंदर लिया हुआ सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है और बाहर छोड़ा हुआ सांस आपको विश्राम दिला रही है।
कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं, मैं अपनी मन की आंखों से देख रहा हूँ, भले मेरे टर्मिनल में नहीं दिख रहा है बट मैं देख रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठे हैं तो करिए, सिर्फ सांस लेना छोड़ना बस, और क्या है, कंजूसी क्यों कर रहे हो? आपका शरीर के लिए आप जियो तो बस, इसलिए करें। करें, जो भी हो रहा होने दें, किसी का कुछ भी होगा बाहर निकल जाएगा, सर्दी होगा सर्दी सब बाहर आ जाएगा, चिंता मत करें, निकलने से टॉक्सिन्स को बाहर आने दें। विश्राम करें। विश्राम। नेक्स्ट इज कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल का मतलब होता है फोरहेड, भाती का मतलब होता है चमक, प्राणायाम का मतलब होता है गिविंग फोर्स टू आवर प्राण। कपाल भाती में क्या करते हैं, देखिए नाक में ऐसा कुछ एहसास करना है कि नाक में कुछ फंसा है, उसको निकाल रहे हैं और पूरा पेट को अंदर खींचना है। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम की एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप अगर जब सांस लेते हैं तो आप सांस जब लेते हैं आप अपना पेट को छू के देखिए। यू जस्ट कीप योर हैंड इन योर स्टमक, ऑन योर स्टमक, एंड विजुअलाइज दैट कि आप जब सांस लेते हैं तो आपका पेट अंदर आता है कि पेट बाहर जाता है। The best method, the right method of taking the breath doing Bhastrika pranayam is that your stomach should come outside. Like गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो क्या होता है, फूलता है ना, तो सांस लेते समय हमारा पेट बाहर आना चाहिए। कपाल भाती में देखिए, पूरा लंग्स क्लियर, हमारा लंग्स में शक्ति मिलती है, हमारा फेफड़ा जो है पूरा क्लियर हो जाता है। देखिए सांस जब लेने में तकलीफ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बलगम, बिकॉज ऑफ द स्पुटम। बलगम जो है, बलगम जब फंस जाता है हमारे फेफड़े में तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम कपालभाति पूरा अंदर से पूरा उसको सर्विसिंग करते हुए, पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हैं और लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट से लिए और राइट से छोड़े। ये अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, पार्किंसन को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। जो बच्चे जो कंप्यूटर में बैठ के जिसके आंखों में पानी आता है ना, उससे ये सॉल्व होता है, ठीक हो जाता है। अपने शरीर को और अंदर से बॉडी, लंग और बोन को मजबूत करता है। और माइग्रेन पेन, जिसको सर में दर्द होता है, आधे आधा सर दर्द देता है, कान बजता है, उनके लिए, जिसका आंख फड़फड़ाते हैं, उनके लिए दी बेस्ट है। डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दवाई, पूरी चीज कुदरत ने, कायनात ने हमारे शरीर में दिया हुआ है। हमको आलस से छोड़ के हमको ये करना है, करना है, जिंदगी में यही करना है। आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir, it is audible. Yes, sir. ओके, You're audible. तो मैं Yes, sir. रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग से आग्रह करूंगा, मेरे साथ एक छोटा सा गीत गुनगुनाएं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो हम जब तक जीते हैं खूब 100% जिए, किसी का सहारा ना लेना पड़े अपने बुढ़ापे में, जब तक रहें स्वस्थ रहें, ये पद्धति अपनाते हुए रहें। देखिए वज्रासन, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाना के पास भोजन उपरांत अपन कर सकते हैं। अब भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठिए, देखिए पेट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। 15 मिनट बैठिए, टीवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, आप वज्रासन में बैठिए। और ये जो पोज दिख रहा है, ये इट इज नोन एज मंडूकासन। देखिए मुट्ठी को इस प्रकार बंद करते हैं और पूरी तरह हमारा पेट में दबाते हुए झुकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, डायबिटीज, डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव औषधि है। हमारा पैंक्रियास गेट एक्टिवेटेड,
हम जब इसको प्रेस करके चुभते हैं तो हमारा पैंक्रियास एक्टिवेट होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज सूर्य नमस्कार आसन। राजाओं का राजा, मतलब आसन का राजा, आसन जितना आसन है उसका राजा कहते हैं सूर्य नमस्कार। अगर आप सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं कर पाए, शाम हो या सुबह है, कभी भी एक बार सूर्य नमस्कार आसन करिए। सी आई हैव अंडरगोन ट्रेनिंग फ्रॉम निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस से मुझे ट्रेनिंग मिला है। तो जब वो डॉक्टर्स ट्रेनिंग दिए तो उनका कहना ये था कि हमारे निमहांस बैंगलोर में पूरे पेशेंट को, जो मेंटल पेशेंट है, स्ट्रेस से रिलेटेड पेशेंट है, उनको हम फर्स्ट एक्सरसाइज यही करवाते हैं, दैट इज सूर्य नमस्कार आसन, 12 स्टेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार। It is very effective. It is the complete package of all the asanas. First asana is Pranamasana, second is Hastutanasana, third is Padhastasana, fourth is Ashwasanchalanasana, fifth is Parvatasana, sixth is Ashtang Namaskarasan. Why do you spell as Ashtang Namaskarasan? क्या होता है Ashtang Namaskarasan? अष्टांग मतलब हमारे 8 अंग लगते हैं वो शरीर के। Then is Bhujangasana, then once again comes back to reverse होता है, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तुतानासन एंड प्रणमासन। लास्ट में शवासन पे लेट जाएं। शवासन एक ऐसा विधि है, जितना भी एक्सरसाइज किए हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, उस शरीर में पूरा अब्सॉर्ब करने का काम करता है। लास्ट में शवासन पे रेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जितना भी आप एक्सरसाइज किए हो वो आपका शरीर एक्सेप्ट कर लें। मेडिटेशन हम सिखाते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा था, स्टीम जरूर लीजिए एक बार, वंस इन ए वाइल यू टेक स्टीम। ऐसे 200, 250, 300 रुपया का आता है स्टीम, घर में जरूर रखिए और भाप लीजिए। क्योंकि देखिए हम जब गर्म पानी पीते हैं तो हमारे यहाँ का जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाता है, बट नाक में जो एंटर कर गया वो इस स्टीम से ही समाप्त होगा। सो दैट इट इज बीइंग टोल्ड बाय द डॉक्टर, स्पेशली फ्रॉम experts, that you should keep steam in your home. Namaste, the divine in me honors the divine in you. इस प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है। आज विश्वास है कि आपको अच्छा लगा, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल लगा। मैं आप लोग से सुनना चाहता हूं, फिर हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। कैसे रहा सेशन? सर इट वाज बहुत एक्सीलेंट। अच्छा सेशन रहा है। एक्सेलेंट सेशन सर, थैंक एक्सेलेंट। यू। अब हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। समय बहुत कम है हमारे पास। इस मेडिटेशन में इट इज साइंस ऑफ ब्रेथ। इस मेडिटेशन में आपको मैं विजुलाइज कराऊंगा, वो इमेज को आप विजुलाइज करना है। इफ आई विल टेल विजुलाइज एन एप्पल, तो आपको एप्पल का चित्र इमेज ब्रेन में फॉर्म करना है। तो आपको अपने मम्मी पापा को चेहरे में देखने बोलूंगा, तो आपको यू हैव टू विजुलाइज योर मम्मी एंड पापास फेस, स्माइलिंग फेस। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लें, पूरी तरह आंखें बंद कर लें। और इस इमेज फॉर्म के बाद एक ऐसे म्यूजिक बजेगा, एक ऐसे प्रेयर बजेगा। उस प्रेयर में आपको सिर्फ आनापानासति करना, दैट मीन्स आपको सिर्फ सांसों में ध्यान रखना। सिर्फ सांस अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। सिर्फ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, कुछ नहीं। बहुत पावरफुल प्रेयर है। इट इज अ प्रेयर फ्रॉम तिब्बत। उस प्रेयर में कहा गया है कि इस वक्त जो भी ये प्रेयर सुन के ध्यान कर रहा है, इनके जीवन से जो भी कठिनाई है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब आज दूर छोड़ के चले जाएं। दैट इज द वर्ड्स इन दैट प्रेयर। कई जगह में इस पूरे जो डिप्लोमेट्स हैं एंड ब्यूरोक्रेट्स यूज्ड टू स्टार्ट देयर दिनचर्या, डे टू डे वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मेडिटेशन म्यूजिक। सो आज वो एक्सपीरियंस करेंगे। आंखें बंद कर लें, पूरी तरह समर्पित हो जाएं। आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दें, विचारों को ढीला छोड़ दें। शरीर के साथ रहें, मन के साथ रहें। अपने चेहरे को देखें, बिल्कुल भी आंखें बंद कर लें। आप सिर्फ आंखें तभी खोलेंगे जब मैं कहूंगा, और आंखें खोलते वक्त बहुत धीमी गति से आंखें खोलना है आपको। ब्लिंक अपने चेहरे को देखें जैसे कि आप आईने के सामने खड़े हो और आप अपना चेहरा देख रहे हो। विजुअलाइज योर फेस एज इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू आर विजुअलाइजिंग योरसेल्फ।
करोड़ों खरबों रुपए के शरीर के साथ रहे, उस सर्वशक्तिमान को थैंक्स दें कि आपको इतना सुंदर चेहरा दिया है। कई लाखों में अकेला चेहरा, कई लाखों में अकेला चेहरा।